आइए अब आपको बता दें कि संजीव सान्याल जी की इस वक्त सीईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। Global economic crisis. The document, a few extra thematic chapters were added to it by the then Chief Economic Advisor, Dr. Arvind Vemani, perhaps to explain the predicaments of that time. So you began to see a shift, somewhat of a shift from the purely sectoral approach to adding more themes. And it became a longer document, certainly by 2011-12, that you have on the screen. It was by this point almost 500 pages long. Now, it then became split into 2 volumes in 2014, but that was a split in 2014 into a text volume, which was mostly done in a sectoral format, and a statistical appendix volume. So there was 2 volumes, but in this format. But in the subsequent years, it ended up with a volume 1 and a volume 2. The first volume tended to have thematic chapters, and the second had the more traditional chapters from the sectoral type chapters. That has now been changed in this economic survey, and this is what it looks like. There is a volume 1, or you can call it the text volume, the economic survey itself. That is the main volume, which we just released. But there is a second volume, which is the statistical appendix, and it's been given a character of its own. It's been refreshed. Many old tables have been removed. New tables have been added. For example, new kinds of data like GST, IGST, and so on have been added. There's a whole new section on high-frequency indicators as well, in line with some of the thinking that I will now talk about. Now to the content of the economic survey of this year. Now, one of the clear points we make right up front in the survey is that there's been a revival of economic activity to pre-pandemic levels in the year 21-22. This shows through in the national accounts, and it shows through in a whole bunch of high-frequency data that we have. I've just, for illustration, put the e-way bill collection, and you can see that there was a big contraction during the national lockdown last year, then a sharp revival, a more shallow slowdown during the second wave. So even though there was the health cost of the second wave was much more severe, the economic cost of it, by almost all accounts, was much milder, but there was an impact, and then a subsequent revival. So where does that revival? So where does that leave us? Well, as you know from the advanced estimates, the economy this year is estimated to have grown by 9.2% after a contraction of 7.3% in the previous year. And you can see on the slide on the right that it is now a little bit above where it was in terms of economic activity, where it was before the pandemic. So in other words, we have now grown past the pre-pandemic level. What does it mean in terms by sector? This sectorally, we tend to look at it as a GVA, or gross value added perspective. And you can see what happened to different sectors. And the very last column is a comparison with the pre-pandemic era, which is 2019-20. And you will see that the agriculture sector, not surprisingly, this is the sector that was the least affected by lockdowns of various kinds. So this is a sector that grew even in 2021 and then again in 21-22. So in that sense, it is now a little short of 8% above where it was in pre-pandemic phase. The industrial sector did go through a contraction, but then it went through a significant revival as well. And now it is about 4.1% above pre-pandemic levels. And the subsector. और आज का दिन जरूरी और काफी महत्वपूर्ण भी, क्योंकि बजट से एक दिन पहले आज संसद में इकोनॉमिक सर्वे भी पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 पेश किया और इस सर्वे के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-2023 में जीडीपी ग्रोथ 8 से 8.5% रहने का अनुमान जताया गया है। इकोनॉमिक सर्वे की बारीकियों को और अच्छे से समझते हैं। मुंबई से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश मिश्रा है। ब्रजेश, एक बार फिर से हम एक और बजट देखने की तैयारी में है जो कोरोना पैंडेमिक के बीच हम सबके बीच आएगा। चुनौतियां कई है, कई सेक्टर्स पर फोकस करने की भी बात की गई, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की 10 बड़ी बातों की बात करें, क्या खास रहा है इस बार?
देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले अगर देखें तो ये एक राहत की बात है कि जो अर्थव्यवस्था जो पटरी से एक तरह से उतर गई थी महामारी की वजह से, एक बार फिर से पटरी पर आती जो है वो दिख रही है। और जो आंकड़े सरकार उम्मीद कर रही है कि मौजूदा जो कारोबारी साल है वहाँ पर 9.2% की जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद सरकार कर रही है कि ये इतना हो सकता है। साथ ही जो अगला कारोबारी साल होगा यानी FY23, उसके लिए 8 से 8.5% जो है जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद का सरकार को अनुमान है। एक और जो अच्छी बात रही है इसके बीच में ये कि जो कृषि क्षेत्र है जिसको जो करीब 19% के आसपास का योगदान देता है जीडीपी में, वो जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं रहा महामारी की वजह से। ये एक बड़ा जो है सपोर्ट सिस्टम एग्रीकल्चर सेक्टर का रहा है। एक दूसरा जो पहलू है एक वित्तीय घाटे का, वहाँ पर सरकार को जो अनुमान है कि 6.8% का जो वित्तीय घाटे का लक्ष्य था, सरकार उसको हासिल कर लेगी। और इसके पीछे बड़ी वजह जो बताई जा रही है, जो बताया सरकार ने, वो ये बताया है कि जो टैक्स आमदनी है सरकार की वो काफ़ी अच्छी है, जबकि अगर उससे जो है ये काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। हालांकि जो विनिवेश का लक्ष्य था वो सरकार ने जो जितना तय कर रखा था शायद वो पूरा नहीं हो पाया उतना ज़्यादा, लेकिन टैक्स आमदनी बहुत अच्छी होने की वजह से जो है सरकार वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने का भरोसा जता रही है। साथ ही जो कोविड की वजह से डेट और जीडीपी का जो रेशियो था वहाँ पर शायद थोड़ी सी बढ़ोतरी दिख सकती है, लेकिन सरकार ने भरोसा दिया है कि उसको भी काबू कर लिया जाएगा। जहाँ तक बात है महंगाई को लेकर थोड़ी सी चिंता जताई गई है, क्योंकि जो कच्चा तेल है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है और इसका असर जो है सभी जगहों पर दिखेगा। साथ ही कुछ ग्लोबली जो कुछ सप्लाई डिसरप्शंस थे उनका असर भी थोड़ा दिखेगा, लेकिन इस बात को लेकर थोड़ी सी संतोष की जा सकती है कि जो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई दर है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। और आगे जाकर जब भी कच्चे तेल के दाम थोड़े काबू में आएंगे तो सरकार को उम्मीद है कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, उसको काबू कर लिया जाएगा। शेयर बाज़ार को लेकर जो है बहुत बढ़िया भरोसा जताया गया है और ये कहा गया है कि सबसे अच्छी बात है कि बड़े पैमाने पर छोटे निवेशक जो है शेयर बाज़ार से जुड़ रहे हैं और अप्रैल से लेकर दिसंबर तक करीब 2.5 करोड़ नए डीमैट खाते जो है वो खोले गए हैं। और एक और अच्छा ट्रेंड जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है वो ये है कि कंपनियां पूंजी के लिए कंपनियां ग्रोथ के लिए बैंकों से कर्ज लेने के बजाय मार्केट से कर्ज उठा रही हैं। ये एक बढ़िया इंडिकेटर है। इसके अलावा रोजगार को लेकर जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि 2018-19 और 19-20 में करीब 4.25 करोड़ वर्कफोर्स जो है जुड़ा है। और एक ट्रेंड और जो कहा गया है कि जो इकोनॉमिक पैंडेमिक के दौरान थोड़ा सा लोगों में इस बात को लेकर डर रहा है कि वो लोन लें या ना लें, क्योंकि EMI जाकर उनको चुकानी पड़ सकती है आगे। और इस दौरान जो नौकरी को लेकर अनिश्चितता रही उसकी वजह से होम लोन डिमांड पर थोड़ा असर दिखा है। वाकई बहुत शुक्रिया ब्रजेश, आर्थिक सर्वेक्षण की बड़ी बातें हम तक पहुंचाने के लिए, उसको डिकोड करने के लिए। आइए 2 बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। एक तो इस बजट से इंश्योरेंस सेक्टर को कौन से बड़े ऐलान होने की संभावना है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही एक बड़ी खबर म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करते हैं जिसका पैसा विदेशी कंपनियों में लगता है, तो ये खबर आपके लिए समझना जरूरी है। दोनों ही खबर को अच्छे से समझाने के लिए अनुराग हमारे साथ है। अनुराग, एक तो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई बजट डिमांड और दूसरी म्यूचुअल फंड में इंटरनेशनल निवेश से जुड़ी हुई, दोनों ही खबरों के मायने बताइए। जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियों है वहां पर जो बजट के अंदर है पूंजी डालने का ऐलान हो सकता है। हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक 5 से 7 हजार करोड़ रुपए जो है सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मिल सकती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं सरकारी, उसमें से 3 की जो है सॉल्वेंसी की स्थिति बेहतर नहीं है। तो सॉल्वेंसी की स्थिति को बेहतर करने के लिए, और एक और जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है वहां पर जो क्लेम्स वगैरह के बाद जो है उनकी सॉल्वेंसी की स्थिति को और बेहतर करने के लिए पूंजी डाली जा सकती है। इसके अलावा ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए ग्रोथ कैपिटल के तौर पे भी, क्योंकि जिस तरह से कंपनियों को और विस्तार करना है वहां पर भी पूंजी की जरूरत है। और जो 2017 से जो वेज रिवीजन पेंडिंग है सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का, वो वेज रिवीजन के लिए भी पूंजी की दरकार है। तो इन तमाम वजह से सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के अंदर पूंजी डाली जा सकती है।
एक और जो सवाल आपने पूछा कि जो सख्ती की गई है, जो म्यूचुअल फंड है, जो एसआईपी निवेश करते हैं विदेशी कंपनियों के अंदर, विदेशी फंड्स के अंदर, ग्लोबल फंड्स के अंदर, वहां पर रोक लगा दी गई है। और उसकी रोक ये की वजह यह है कि जो 50,000 करोड़ यानी 700 करोड़ डॉलर की जो लिमिट थी वो पूरी हो गई है, तो उस लिमिट की वजह से ये रोक लगा दी गई है। तो इसका जो असर है मौजूदा आपकी एसआईपी एसटीपी पर नहीं होगा, लेकिन अगर ये कुछ महीने के अंदर ये रोक में जो लिमिट है वो बढ़ती नहीं है, जो अभी 700 करोड़ डॉलर की जो लिमिट है इसको और बढ़ाया नहीं जाता है, तो फिर जो आपकी एसआईपी का जो पैसा है वो विदेशी फंड्स में नहीं जाएगा, जो ग्लोबल फंड्स है वहां पर ये पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया अनुराग। इंश्योरेंस और दूसरी म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई दोनों ही खबरों का असर हम तक पहुंचाने के लिए और हम इसके मायने बताने के लिए।